Hello class, once again I am back with my new video for your math class. Today I am going to take a new chapter, that is decimal. ठीक है, decimal. So you have already learned about the decimal in your previous class. अपने पीछे वाले क्लासों में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा. Means decimal is the number which contain some whole number and some fractional part which are changed in the decimal form. Okay, decimal number is number which contain whole number as well as decimal part. Clear? Just like 28.256, this is decimal number. Here 28 is a whole number, whole part, and this is the decimal part. और ये पूरा मिलकर क्या बनता है? Decimals. Means decimals are the number which contain whole part and decimal part. Decimal part means the number which are coming just after the point are decimal. Decimal के just right side में जो number आते हैं उनको हम क्या होते हैं? Decimal part बोलते हैं. Clear? So these are the decimals. And you have already learned about the multiplication, division, subtraction, addition, whatever the things related to the decimal. You have already learned about some things relating to the decimal. कुछ चीजों के बारे में आपने डेसिमल के से जुड़ी कुछ चीजों के बारे में पहले से पढ़ रखा है. एंड इन दिस पार्टिकुलर चैप्टर यू विल लर्न सम एक्स्ट्रा थिंग्स रिगार्डिंग टू द डेसिमल. डेसिमल से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा चीज आप क्या करोगे? पढ़ोगे. द फर्स्ट टर्म इज लाइक डेसिमल. What is like decimal? Any decimal which contain the same number of decimal is called like decimal. Means ऐसा कोई डेसिमल नंबर जिसमें नंबर ऑफ डेसिमल जो है यानी डेसिमल पार्ट में जो नंबर है वह सब में सेम हो. मीन्स सेम नंबर हो. ठीक है, डिजिट सेम नहीं हो, डिजिट अलग अलग हो बट काउंटिंग उनकी सेम हो. ऐसे को बोलते हैं like decimal. Means a decimal number which have same number of decimal is called like decimal. For example, 2.936, 84.251, 273.018, 100.206. Okay? All these are the like decimal. Why? Because there are 3 digits in the decimal part, there is also 3 digit, there is also 3 digit and there is also 3 digit. तो यहाँ देख सकते हो आप कि जितने भी डेसिमल हमारे पास हैं सब में नंबर ऑफ डिजिट सेम है. मींस इट आल्सो हैव अ 3 digit in decimal part, it also have a 3 digit in the decimal part, 3 digit in decimal part, 3 digit in decimal part. So this type of condition generally called as like decimal. After that there is unlike. What are unlike decimal? Unlike decimal means if the decimal number carrying the different digit in their number of decimal part. If there are some decimal number and each of them have different digit in their decimal part, this type of number are known as unlike decimal. यानी बहुत से अगर डेसिमल नंबर दिए हों और सभी डेसिमल नंबर की डेसिमल पार्ट में जो नंबर ऑफ डिजिट है वो अलग अलग आए, यानी नंबर ऑफ डेसिमल अगर किसी डेसिमल नंबर के डिफरेंट आएंगे तो सब इसको एक क्या कहलाएंगे? अनलाइक कहलाएंगे. फॉर एग्जांपल जस्ट 1.26, 24.129, 16.5 और 1.0836. तो ऑल ऑफ देम आर अनलाइक ईच अदर. इसमें सभी के लिए अलग है. यहाँ क्या है? 2 है, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ कितना है? 4 डिजिट है. तो डेसिमल पार्ट में देख सकते हैं कि सब में अलग अलग डेसिमल नंबर है. ठीक है, नंबर ऑफ डेसिमल क्या है? अलग अलग है.
मीन्स यहाँ 2 नंबर ऑफ डेसिमल है, 3 नंबर ऑफ डेसिमल है, या 1 है, और यहाँ कितना है 4 है. सो इफ द डेसिमल नंबर हैव द डिफरेंट डिजिट इन देयर डेसिमल पार्ट, इन दैट पार्टिकुलर कंडीशन दे आर नोन एज अनलाइक डेसिमल. अगर डेसिमल नंबर में नंबर ऑफ डिजिट इन द डेसिमल पार्ट इज डिफरेंट, देन दे आर नोन एज अनलाइक डेसिमल. तो ऐसे कंडीशन में उनको हम अनलाइक डेसिमल कहते हैं. नाउ कंपेयर अब डेसिमल नंबर. Decimal number का comparison, the comparison of the decimal number. So if there are two decimal and asking to us to give the idea which is greater and which is smaller, or whether they are equal or not. क्या कोई इसमें बड़ा है, कौन इसमें छोटा है, या क्या चांसेस बनते हैं कि दोनों इक्वल है, ऐसा जो कुछ करते हैं उसको हम कंपैरिजन बोलते हैं. ठीक है. सो हमें दो डेसिमल नंबर दिया था, उनको कंपेयर करने को बोलता है. तो जब भी हमें कंपेयर करने को कहा जाता है तो फर्स्ट स्टेप इज टू जस्ट मेक देम लाइक. पहला काम होता है कि हम उनको उसको लाइक करें. मीन्स द नंबर ऑफ डेसिमल पार्ट, द नंबर ऑफ डिजिट इन डेसिमल पार्ट शुड बी इक्वल. इफ दे आर नॉट इक्वल, सो फर्स्ट स्टेप इज टू मेक देम इक्वल. अगर इक्वल होने चाहिए, अगर नहीं है तो इक्वल करना पड़ेगा. ठीक है. जस्ट फॉर एग्जांपल, इफ इट इज आस्किंग टू 29.325 एंड 16.16, और हमसे कहता है कि कंपेयर करो. यार इसको ऐसे लिख देता हूँ. जो भी दे रहा हो, क्योंकि एग्जाम्पल तो होता ही है. तो हमारा पहला काम देख सकते हैं कि यहाँ 3 डिजिट है, वहाँ 2 डिजिट है. डेसिमल के बाद यहाँ 3 डिजिट है और डेसिमल बाद यहाँ 2 डिजिट. सो पहला काम इसको लाइक बनाने के लिए क्या करोगे, 29.325 ऐसे रहेगा और ये हमारा लिखा जाएगा 16.150. क्लियर. अब हो गया लाइक में. अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कंपेयर करना. तो स्टार्ट करना कंपेयर का मतलब क्या होता है कि इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. होल पार्ट, डेसिमल पार्ट, होल पार्ट, डेसिमल. पहले हम होल पार्ट को कंपेयर करते हैं, फिर डेसिमल पार्ट को कंपेयर किया जाता है. ठीक है. तो पहले कंपेयर करते वक्त हम नंबर ऑफ डिजिट देखते हैं होल पार्ट का, कि नंबर ऑफ डिजिट कितना है होल पार्ट में. तो यहाँ देखा जाए तो 2 डिजिट यहाँ भी है और 2 डिजिट यहाँ भी है. इसका मतलब ये हुआ कि डिजिट के हिसाब से बता नहीं सकते कौन बड़ा कौन छोटा है, क्योंकि रूल कहता है कि अगर हम दो नंबर कंपेयर करते हैं और अगर उसको डिजिट के हिसाब से कंपेयर करते हैं, कोई 3 डिजिट का हो कोई 2 डिजिट का हो, तो सिंपल सी बात है 3 डिजिट वाला 2 डिजिट से बड़ा होगा. जैसे अगर हम 28 लिखे हों और 128 लिखे हों और पूछे कौन बड़ा कौन छोटा है, तो इसका डिजिट 2 है और इसका डिजिट 3 है. 128 में 3 डिजिट है और 28 में 2 डिजिट है. इस हिसाब से 121 इज ग्रेटर देन 28. इस तरह से 128 क्या है, 28 से बड़ा है. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 29 में भी 2 डिजिट है और 60 में भी 2 डिजिट है. इसका मतलब हुआ कि इस बेसिस पर नहीं करेंगे. अब क्या करते हैं, हम लेफ्ट साइड से कंपेयर करना शुरू करते हैं. तो देखते हैं अगर 2 ग्रेटर देन 1, 2 जो है 1 से बड़ा है, तो सिंपल सी बात, ये पूरा बड़ा हो जाएगा, वो पूरा छोटा हो जाएगा. तो हम लिख सकते हैं कि 29.325 ग्रेटर देन 16.150. जैसे और उसको ऐसे लिख सकते हो 29.325 ग्रेटर देन 16.15. 29.325 ग्रेटर देन 16.15. तो जब भी आपको कंपेयर करने को कहता है तो पहला स्टेप है कि आप क्या करोगे, लाइक बनाओगे. लाइक बनाने के बाद आफ्टर दैट यू विल टेक द होल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट सेपरेटली. आप होल पार्ट डेसिमल पार्ट को अलग अलग रखोगे. उसके बाद जो डेसिमल पार्ट जो होल पार्ट है उसमें नंबर ऑफ डिजिट को चेक करोगे.
अगर नंबर ऑफ डिजिट अलग अलग हैं तो जिनमें ज्यादा रहेगा वो बड़ा हो जाएगा, जिनमें कम रहेगा वो छोटा हो जाएगा। इफ द नंबर ऑफ डिजिट इन होल पार्ट ऑफ द बोथ द डेसिमल नंबर आर सेम, इन दैट पार्टिकुलर कंडीशन वी विल स्टार्ट टू कंपेयरिंग द डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो हम लेफ्ट साइड से कंपेयर करना शुरू करेंगे। जैसे इसमें 2 था, इसमें 2 था, तो डिजिट के बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ डिजिट वी कांट से व्हिच नंबर इज ग्रेटर एंड व्हिच वन इज स्मॉलर। सो वी हैव टू टेक अ सेकंड स्टेप, दैट इज कंपैरिजन ऑफ द डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से हमें डिजिट को कंपेयर करना पड़ेगा। हियर वी कैन सी दैट 2 एंड हियर इज 1 एंड वी नो दैट 2 इज ग्रेटर देन 1। इफ 2 is greater than 1, so all the total decimal number of this particular is greater than this particular decimal number. ये इससे क्या होगा, बड़ा होगा। आप लिख लेना, आंसर आ जाएगा। मैं एग्जाम्पल सॉल्व करता हूं, उसके बाद जोड़ेंगे। Example is given. First example is given. Which is greater 43.50 or 27.5? इसमें से कौन बड़ा है? तो लिख दो 43.50 और 27.5। ठीक है, मैं अपने लिए सॉल्व कर दिखा रहा हूँ। इसको बनाना चाहो तो बना सकते हो, 0 लगाकर लाइक। अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो डिजिट के बेसिस पे होगा। ठीक है, चाहो तो इसको डायरेक्टली भी लगा सकते हैं सिंपल। देखा तो 43 अगर लेता हूँ मैं, 4 लेता हूँ तो 4 इज ग्रेटर देन 4 जो है 2 से क्या है, बड़ा है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यह पूरा पूरा इससे क्या होगा, क्लियर। आपको मतलब नॉर्मली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे कंपेरिजन किया जाता है, बट आपको तो वहाँ एक्सप्लेन करना नहीं होता है। आप डायरेक्टली सिंबल लगा सकते हो कौन बड़ा है कौन छोटा है। सेकेंड एग्जाम्पल, विच वन इज स्मॉलर? ठीक है, 36.253 या 36.158 इनमें से कौन बड़ा है हमें बताना है। तो अगर देखा जाए सॉल्यूशन अगर मैं करता हूं तो पहली बात है कि इसको लिख लेता हूं। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पे 2 डिजिट है, लाइक भी है, तो डिजिट के हिसाब से तो नहीं कर सकते। तो हम जानते हैं, चेक करें, 3 है, 6 है, तो 3 को लेंगे तो वहां भी 3 है, तो इस बेसिस पे नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे 6 लेंगे, यहाँ भी 6 है, तो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 2 लेंगे यहाँ का डेसिमल के बाद, डेसिमल एक तरह से नेग्लेक्ट करके रखोगे, और यहाँ 1 है, तो हम जानते हैं 2 इज ग्रेटर देन 1। 2 जो है 1 से बड़ा है, इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 36.253 इज ग्रेटर देन 36.158। क्लियर। तो आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, आप डिजिट काउंट करोगे, स्पेशली होल पार्ट का। डेसिमल पार्ट का डिजिट कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसको हम लाइन बना लिए रहते हैं, और उससे वैसे भी हम होल पार्ट से स्टार्ट करते हैं कंपेयर करना। अब जब करोगे इस सब से क्या होगा, सॉल्व होता चला जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्वेश्चन दे रखा है 7.32, फिर 1.5, 2, 3, 0.65, 7.5 और 3.6। सो पहला काम हमारा यह रहेगा कि इसको लाइक में चेंज करें। किसमें? लाइक में। तो देख लो मैक्सिमम कितना है, डेसिमल 3 है, ये हो जाएगा 7.320, 1.523, 0.650, 7.500 और 3.69। नाउ हमें असेंडिंग ऑर्डर करना है, मतलब सबसे छोटे सबसे बड़े की तरफ। पहले होल पार्ट का देखते हैं और फिर डेसिमल पार्ट का। पहले होल पार्ट में चेक करते हैं क्या सबका डिजिट सेम है या अलग अलग। ये अभी 1 डिजिट का है, वो भी 1 डिजिट, होल पार्ट में 1 डिजिट और 1 डिजिट। ठीक है, मतलब सब जगह 1 डिजिट है। इस हिसाब से हम डिजिट के हिसाब से नहीं बता सकते हैं कि कौन ग्रेटर कौन स्मॉलर है। सो स्टार्ट करते हैं हम कंपेयर करना। यहाँ 7 है, 7 से छोटा 1 है, ठीक है। यहाँ 0 है, यहाँ 7 और 3 है, तो सबसे छोटा कौन है? 0 वाला। तो लिख सकते हैं 0.650 सबसे स्मॉलर है। अब इसके बाद अगला देखते हैं। और अगला देखा जाए तो यहाँ 7 है, ये 1 है, इसका काम हो गया खत्म, ये तो फिनिश हो चुका है। यहाँ 7 है और 3 है, तो सबसे छोटा इसमें कौन है? 1 है ना, सबसे छोटा 1 है, मतलब सबसे छोटा। इसके बाद इसका नंबर आएगा तो 1, 5, 2, 3। अब ये 2 खत्म हो गए, अब 3 बचते हैं। यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7 और यहाँ पे 3। अब इसका नंबर रहेगा 3.690। अब इसमें देखा जाए तो 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, तो 7 के हिसाब से होगा नहीं। अगला देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो 3 स्मॉलर है, किससे? 5 से। ये पूरा स्मॉलर रहेगा उस वाले से, तो हो जाएगा हमारा 7.320 और ये हो जाएगा 7.5। ठीक है, चाहो तो इसको ऐसे वापस इनका अपने फॉर्म में लिख सकते हो, जो हमने लाइक के लिए लगाया तो उसको हटा सकते हो। तो इसको जब भी आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर डेसिमल में करना होता है तो पहले आप लाइक कर लोगे, क्योंकि हो सकता है कि डेसिमल में जाए। क्लियर? उसके बाद आप जब लाइक कर लोगे तो पहले होल पार्ट को चेक करोगे। जैसे कंपेयर किया था 2 नंबर का, वैसे 2 से अधिक का भी कंपेयर किया जा सकता है। आप उसके बाद चेक करते जाओगे पहले डेसिमल के हिसाब से। डेसिमल पे अगर डेसिमल करेंगे डिजिट पे, होल पार्ट में डिजिट अगर सेम है तो एक एक डिजिट को कंपेयर करते हुए चलोगे। जो सबसे छोटा आएगा डिजिट में वो सबसे छोटा माना जाएगा, उसके बाद जो बड़ा होगा उसके बाद, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्या, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है to convert, next point is to convert a decimal into fraction। डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना। जैसे हमारा दिया है, एग्जाम्पल में लिख लेता हूँ क्या क्या है। A 0.7 को चेंज करना, B दिया है 1.5 को, C दिया है 0.006 को और D दिया है 3.22 को। हमें इनको डेसिमल चेंज करना है। तो अगर देखा है तो सॉल्यूशन करता हूं मैं, 0.7 को डेसिमल में चेंज करने मतलब क्या हुआ कि डेसिमल को रिमूव करना, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करने का मतलब ये हुआ कि डेसिमल को रिमूव करना है। तो डेसिमल रिमूव होगा कैसे? तो हम पता करते हैं कितने प्लेस पे डेसिमल लगा है। हमेशा डेसिमल राइट साइड से चेक करते हैं,
तो 7 है, 7 के तुरंत बाद डेसिमल लगा, यानी 1 प्लेस पे डेसिमल। तो रूल कहता है कि जितने प्लेस पे डेसिमल लगा होता है 1 के साथ उतना जीरो लगा के हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ 7 था, 7 पे 1 प्लेस पे डेसिमल था, तो हमने 7 को 1 के साथ 1 जीरो लगा क्या कर दिया, डिवाइड। ये क्या होगा 7/10। 0.7 जो है ये चेंज हुआ किसमें, फ्रैक्शन में। अगर अगला देखें तो b का अगर मैं देखूं तो ये 1.5 है ना। यहाँ भी 1 प्लेस पे डेसिमल है, तो 1 प्लेस पे डेसिमल है, तो डेसिमल रिमूव करने के लिए 1 के साथ 1 जीरो लगाओगे, 1 के साथ 1 जीरो लगाकर डिवाइड कर दोगे। चाहो तो इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हो, 2 से 3 टाइम, सॉरी 5 से 3 टाइम, 5 से 2 टाइम, इट विल बिकम 3/2। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है 0.006 है, क्लियर, 0.006 है। अगर इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में लाना है तो हमें काउंट करना पड़ेगा कितना प्लेस पे डेसिमल है। तो डेसिमल किधर चेक करते हैं, राइट साइड से, 1 2 3 प्लेस पे डेसिमल है, यानी इसको हम 6 जो है, डेसिमल जब हटाओगे तो जो सिर्फ नॉन जीरो नंबर होता है सिर्फ वही लगता है, तो 6 अपॉन कितना रहेगा 2 से कटाओगे 3 टाइम, 2 से कटाओगे 500, 3/500। ये सिंपल फॉर्म इसका है। और इसके बाद इसका देखा जाए तो 322 है। एक बार ध्यान रखोगे डेसिमल के बाद डिजिट अलग अलग पढ़ते हैं, हर एक डिजिट को अलग अलग, उसको एक साथ कंबाइन नहीं पढ़ते हैं। जैसे 159.1692 होगा, अगर इसको मैं पढ़ता हूँ, इसको तो कंबाइन में पढ़ूंगा 159, बट इसको 162 नहीं कहेंगे, 162 कहेंगे। डेसिमल बाद सब अलग अलग पढ़ाते हैं, 162 कहेंगे। अब यहाँ कितने प्लेस पे, 2 प्लेस पे, तो यहाँ 322/100, 2 से डिवाइड कर दो तो 161, और ये कितना जाएगा 50, 161/50। तो डेसिमल रिमूव करने के लिए, डेसिमल को फ्रैक्शन चेंज करने के लिए डेसिमल रिमूव करोगे, और डेसिमल रिमूव करने का रूल ये होता है कि जितने प्लेस पे डेसिमल लगा है, डेसिमल को हटाने के लिए 1 के साथ उतना जीरो लगाकर डिवाइड कर दो, उसके बाद सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर देना। लास्ट आज का जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट दिया है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू डेसिमल फॉर्म। जो नीचे फ्रैक्शन दिया है डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। मतलब अब तक हमने डेसिमल को फ्रैक्शन किया है और फ्रैक्शन को डेसिमल में करेंगे, क्लियर। देखो ए दिया है 37/5 और बी दिया है 6 और 1/2। तो ये तो मिक्स्ड में, इसको चेंज करो सिंपल में, तो जगह 6 2 जा 12 1 13/2। इसको चेंज करने के 2 तरीके हैं, या तो इसको डिवाइड कर दो तो हो सकता है, तो दूसरा तरीका, तो पहले डिवाइड कर समझा देता हूं। पहले कितने टाइम, 7 टाइम, 35, 2 बचा, ठीक है, डेसिमल लगा दिया, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा 0, कितना 4 टाइम। तो ये हो गया 7.4, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 7.4 आएगी। अगर चाहो तो इसका एक और तरीका होता है, रूल कहता है कि जैसे नीचे उसमें 10 100,000 बन रहा था, वैसे इसके नीचे भी 10 100,000 बना दो, क्योंकि जब 10 100,000 बनाओ तो जितना जीरो रहेगा उतना प्लेस डेसिमल शिफ्ट लगाना पड़ेगा, उतना प्लेस डेसिमल शिफ्ट लगाना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ देखो 37/5, अब 5 को 10 में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से।
तो 5 में मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो 10 हो सकता है, तो नीचे 2 का मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो। जब करोगे तो 37 टू जा 74 और 5 टू जा 10। अब तक क्या पढ़ोगे, एक जीरो, ठीक है, एक जीरो रूल करता है, जितना जीरो रहता है उतने प्लेस डेसिमल लगता है, तो एक जीरो है एक प्लेस डेसिमल लगा, यानी 7.4 अपान 1, अभी 1 रहेगा, और हम जानते हैं कि 1 से डिवाइड करने के बाद वही रहेगा, तो कितना आंसर आएगा 7. इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना है तो या तो डिवाइड कर दो जैसे डिवाइड करते हैं, या फिर डिनोमिनेटर को ऐसा मल्टीप्लाई करो कि 1 और 0 कंबाइन हो, चाहे 10 हो 100 हो 1000 इसमें चेंज हो जाए, ठीक है। अगर इसमें चेंज करने में तुम सक्सेसफुल रहते हो तो उसको कर सकते हो 10, 100, 1000। अगर इसको मैं करूं तो इसको भी दो तरीका है, डिवाइड कर सकते हैं, तो 6 टाइम 12 1 डेसिमल लगाओगे 0 उतर जाएगा, 5 हो गया, वैल्यू कितनी आ गई 6.5 डेसिमल में। दूसरा तरीका क्या होता है कि 13/2, अब देखो यहाँ 2 है तो 2 को अगर 10 में बदलना हो तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 नीचे 5 से ऊपर, 35 जा 65, 5 टू जा 10, 1 0 है तो 1 प्लस डेसिमल लगेगा 6.5, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो मैंने करा दिया पूरा एग्जांपल और जब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, आप एक्सरसाइज 5A को सॉल्व करोगे, जो भी डाउट है मुझसे पूछ लो। ओके, थैंक यू।